the third film in one of the biggest film franchises, starring two of the topmost stars of the country, made by the topmost banner of the country. और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ ये टू टॉप मोस्ट स्टार्स ऑफ द कंट्री है. फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम आमिर खान एंड कटरीना कैफ. वेलकम टू बॉलीवुड बिजनेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू कोमल. आमिर, कटरीना कैफ थोड़ी कंपोज लग रही है, कूल लग रही है. आपके चेहरे पर टेंशन लिखा है. हाँ, मैं टेंशन में हूँ. मैं हमेशा रिलीज से पहले काफ़ी टेंस हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ. एक्चुअली हर फिल्म में हम लोग इतना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, हमारे जज्बात होते हैं उसमें. 2 साल से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं. तो जब मौका आता है, जब वक्त आता है रिलीज़ का, तब अंदर से गुड़ शुरू हो जाता है. हाँ, मतलब लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, यू नो, विल दे एंजॉय द फिल्म द वे वी वांट देम टू. तब तक स्ट्रेस टेंशन रहता है. इट्स लाइक, यू नो, हमारे घर में जब मम्मी खाना बनाती थी और कोई मेहमान आते थे, तो शी वुड ऑलवेज बी कीन टू नो कि उनको खाना अच्छा लगा. अच्छा लगेगा नहीं. So the person who puts his heart into what he's doing will always feel the concern. बट आपकी फिल्मों में ये तो तय है कि एक लेवल तक तो अच्छी होगी, उसके बाद कितनी बड़ी हिट होती है. दैट इज द जनरल परसेप्शन इन द पब्लिक कि आमिर खान की फिल्म है, एक ISI मार्क तो लग चुका है, अब कितनी बड़ी हिट होती है. तो आपका नर्वसनेस ये होता है कि एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, या किस हद तक एक्सेप्ट होगी. देखिए, एक्चुअली ये कहने से आप मुझे और घबरा रहे हैं क्योंकि मेरा इंटेंशन नहीं था. मेरा इंटेंशन था to put you at ease. आई नो, बट द थिंग इज दैट जब लोगों को ये फीलिंग आती है कि आमिर की फिल्म होगी तो अच्छी होगी, तो उससे मुझे और स्ट्रेस होता है, क्योंकि मतलब एक एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी उनके मन में है मेरे बारे में, और उससे और फिक्र होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब वो फिल्म देखेंगे तो हमने जो फिल्म बनाई है उनके एक्सपेक्टेशन से कम हो. जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, उतनी ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है. तो इसका कुछ इलाज नहीं है. आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. एंड कटरीना, आपने कैसे मास्टर कर लिया ये आर्ट कि रिलीज के वक्त भी आप इतनी कूल कंपोज्ड रहती है? No, not actually. It's not quite that way. Right now, I'm feeling two things. One is I'm feeling very odd because I must have done, I don't know, at least 8 or 9 interviews with you, and I'm always sitting in that chair. And this is the first time that, you know, that my co-star, my actor, has put me in this chair. So I'm feeling very like odd. I'm feeling like alien. That's right. Something you. She has a very valid point. I feel very thrown off right now. I was all prepared for, you know, exactly how it was going to be. Apart from that, the nervousness you're talking about, I was also thinking that why am I not, you know that usual feeling like, you know, it is there. You always, you anticipate what's going to happen. But there's also a reason why I think that it's not, I feel a little differently towards Dhoom. It's because something Amir said. For many reasons, this film was almost 2 years in the making. And for me, and I'm sure for Amir as well, but for me, a lot of other films I let go of in the process of this film. I wanted to give whatever I had in the film, the training time, the rehearsal time. And it became almost I can say it almost became a little bit of an obsession for me. You know, if there was another film which was coming in the way in the meantime, I said, no, I want to finish this film, I want to do it. And it just has taken such a big part of the last, you know, kind of year, more than a year and a half for me, that I think there's so much emotion gone into it. It's almost like, you know what they say, blood, sweat, and tears, literally, that I think now, you know in your heart, you've done the best you could have possibly done, that, you know, in my capacity. And then now the rest is in God's hands, it's in the hands of the audience. But, you know, Amir's there in the film, and his films are always event films, so, you know, how much am I really going to worry? So. देखिए, सिर्फ पब्लिक नहीं, आपकी को-स्टार भी ऐसा ही सोचती है. That just gets me more worried, but anyway. Yeah, so basically, I'm fully depending on you, completely 100%. I am going to bed at night thinking, that's Amir's there in the film, nothing to worry about. So don't feel any pressure. I mean, no, just don't feel any added pressure from my side. You know, आमिर, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, पिछली बार आपकी फिल्म में 3 था, तो उसने हाईएस्ट स्कोर किया, 202 crore, 3 Idiots. अब धूम में भी 3 है, so another record to break. Actually, I don't think of that. मेरे लिए जो फिल्म की कहानी है, जो स्क्रिप्ट है, वो मुझे बहुत पसंद आई. तो जो मेरा जो ध्यान है, वो हम इस फिल्म में हम क्या करने जा रहे हैं, या इस फिल्म की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना चाहिए इस फिल्म के लिए, मेरा ध्यान उसमें है. आई एम कंसर्न दैट वी डिलीवर द फिल्म दैट वी आर सपोज टू डिलीवर. जो फिल्म हमको बनानी चाहिए वो हमको अच्छी बनानी चाहिए. आपने कहा कि आई लाइक द स्क्रिप्ट. आपको स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी कि आप एक लवर बॉय इमेज वाला हीरो होते हुए आपने एक नेगेटिव रोल एक्सेप्ट कर लिया. लवर बॉय कहाँ रहा मैं अभी?
वो तो मतलब क़यामत से क़यामत तक में मुझे लवर बॉय मैं कटरीना से पूछूंगा, ही इज लवेबल, क्यूट, लवर बॉय, व्हाट इज ही? Let's start with his on-screen image. Obviously, I don't. Your knowledge is superior, but I wouldn't say that Amir just has a reputation of being a, what did you call it? Lover boy. A lover boy. No, I think he's surpassed that in all his films from Lagan. I think actually probably Lagan, Sarfarosh. from Lagan. All those Talash. films. Talash. No, I think Gajni, 3 Idiots, I mean, all Gajni, different- Gajni, different- yeah. Tare No. Zameen Par. So, Exactly. Yeah, so I I've don't not think been so. in I each think, slot. I think probably he's got himself the reputation as the most versatile actor. That's at the very moment. right. You know, very I'm right. sure there's other people बट who are doing well. आज but at तक the नेगेटिव रोल नहीं प्ले किया. नहीं किया ना मैंने फना में था नेगेटिव आई वाज प्लेइंग अ टेररिस्ट आई यूज्ड टू किल पीपल Fana बल्कि- questionable. बल्कि, Yes. बट देन देयर वाज हाँ, बट इस फिल्म में भी रोमांटिक ट्रैक है. धूम 3 में तो कम नेगेटिव है क्योंकि धूम 3 में जो विलन होता है वो एक्चुअली विलन उस मायने का विलन नहीं होता. Villain नहीं ऑलमोस्ट लाइक अ हीरो एक्चुअली. टेल मी हाउ डिफिकल्ट वाज इट ऑन द सेट्स? बहुत डिमांडिंग फिल्म थी बिकॉज जो हम देखते हैं ट्रेलर में बहुत ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत गई है एंड इट कुडंट हैव बीन एन इजी फिल्म. हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट वाज इट shooting for the film? I think it's one of the tougher films I've done, physically and even as an actor. I think the physical demands on me and in fact Katrina as well was really huge. I had to train. I began training a year before I began shooting because I had to look a particular way in the film, and I was hoping to get to 9% body fat and all that. So strict diet, strict workout, and all of that. So I did that. Then there was training for tap sequence. There was training for circus. So physically, it was extremely demanding, the film. But apart from that, even as a performer for me, I felt, in fact, when I heard the script itself, Komal, I felt कि यार this is probably in my last 25 years, this is probably going to be my most challenging role. ऐसा लगा आपको? Yes. स्क्रिप्ट सुनते वक्त ही. हाँ, बिल्कुल. And I think, I mean, I can't explain why, but that when you see the film, you'll realize why I'm saying that. एंड फिल्म करते वक्त आपको ऐसे लगा कि आपने जो It सोचा was था बिल्कुल सही extremely सोचा था. demanding, extremely demanding. I mean, I had to be really fine in my timing. I had to be really fine in my timing. मुझे ये बताइए इस फिल्म की प्रमोशन को लेकर जो एब्सोल्युटली क्रेजी प्रमोशन होता है ना, हैमर एंड टोंग्स, फायरिंग फ्रॉम ऑल फोर सिलेंडर्स, वो वाली बात इस फिल्म के साथ नहीं हुई है. कोई विशेष कारण? मुझे लगता है कि we should respect our audience and we should respect their intelligence. हम लोग हर जगह पहुंच जाएं और हर जगह से हम चिल्लाएं कि भैया हमारी फिल्म देखने आओ, तो वो लोग तंग आ जाते हैं. I feel it's not right. तो इस फिल्म के साथ ही आपको ये एहसास हुआ है? नहीं, या मुझे काफी वक्त से एहसास हो रहा है, इसलिए तलाश में भी हमने तलाश में भी आप लोगों ने प्रमोशन, हाँ. you know, I think you should trust the audience and trust their intelligence and you be confident about the creative work that you have done. आपकी सोच थी या आदित्य चोपड़ा जो प्रोड्यूसर? मेरी सोच तो कई सालों से है. फिर अब आदि फॉर्चुनेटली discuss आदि की भी ये सोच इस फिल्म तो के साथ आपको डिस्कस रही. करना पड़ा या आदि? नहीं, आदि ने भी कहा, when we discussed first time only, he said, you know, Amir, I think less is more. Okay. And I said, I completely agree with you, less is more. And I think we should select how we want to promote the film. So we were on the same page. There was no difference in Adi and me. You know, we didn't go on any TV shows. Exactly, which is the norm these days. Which is the norm these days. जब आपकी फिल्म बहुत छोटी होती है और उस छोटी फिल्म के लिए आपके पास पब्लिसिटी बजट नहीं होता, तब वो एक अच्छा मंच हो जाता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Correct. लोगों को जानकारी मिलेगी आपकी फिल्म के बारे में. हमारी फिल्म में ऑलरेडी पब्लिसिटी बजट है, हम क्यों ना उस पब्लिसिटी बजट का इस्तेमाल करें और अपने इश्तिहार, अपने एड्स, प्रोमोज वो हम बना के टीवी पे दिखाएं, उसी चैनल पे, उसी जीसी पे दिखाएं जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग प्रोग्राम देखने के लिए. सो आई थिंक दैट वॉट एवर वीव डन व्हाट वी फील इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द फिल्म. हर जगह पहुंच जाएं, you know, carpet bombing, I think that irritates people, and we should really trust the audience and their intelligence. They will make up their mind whether they want to come or not. कटरीना, इन्होंने कहा कि it was a very demanding film, physically also, otherwise also. आपने तो एक्शन सीन्स, एक था टाइगर, यशराज फिल्म्स की ही फिल्म थी, एक था टाइगर में बहुत बेहतरीन एक्शन सीन्स किए. इस फिल्म में भी आप स्टंट्स भी कर रही हैं और was it equally demanding, this film? I don't even know if it was hard work. It became more than just work. It became kind of like a Fantastic. lifestyle for that Exactly. time. And so, I mean, after you do all that, the only thing you can do is you can hope that Amir said something once. I was having a conversation very similar with him, and he said that I hope it shows on screen. Like, I hope the impact shows on screen because, you know, the hard work he did, the hard work we all did was evident.
So he said, I hope it shows on screen. So at the end of all of this, this is, I think, what I feel. You know what? When we were training for the Silks, this was before we had decided something. So eventually, I didn't actually even use it. आमिर, मुझे ये बताइए, विजय कृष्ण आचार्य जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इससे पहले उन्होंने एक ही फिल्म डायरेक्ट की है, टशन, जो कि बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। वो कभी विचार आया आपके दिमाग में कि एक नॉट सो सक्सेसफुल डायरेक्टर है, तो डिड दैट थॉट क्रॉस योर माइंड? I'll be honest with you, कोमल, जब आदि ने मुझे पहली दफ़ा फिल्म ऑफर की थी तो मेरा ये रिएक्शन था। तो मैंने आदि को कहा कि यार इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है, तू क्यों नहीं करता डायरेक्ट, यू शुड डायरेक्ट इट। तो इसे नहीं तो स्क्रिप्ट सुन ले, आई थिंक यू लाइक विक्टर। तो आई सेड ओके, आई हियर द स्क्रिप्ट। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, अब आपको ये याद रखना है कि विक्टर लेखक भी हैं फिल्म के, Correct. ही इज द राइटर। बिल्कुल। तो जब विक्टर ने मुझे कहानी सुनाई, स्क्रिप्ट सुनाई पूरे डिटेल में, तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम। बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट विक्टर ने लिखी है, और मुझे ये सेंस और महसूस हुआ उसके नरेशन के थ्रू कि वो एकदम उसके अंदर से आ रही है ये कहानी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये आदि ने सही कहा मुझे कि विक्टर ही डायरेक्ट करेगा। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है कि मैं नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, या किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ जिसने शायद इससे पहले नाकामयाब फिल्म दी हो। मैं एक्चुअली आई एम दैट एक्टर जिसने सबसे ज़्यादा ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो वो चीज़ों से मैं घबराता नहीं हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ की फिक्र रहती है कि आप काम जानते हैं कि नहीं। जब मुझे तसल्ली हो जाती है कि आप काम जानते हैं, फिर मुझे आपके पास में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपके प्रेजेंट में इंटरेस्ट है। इस वक्त आप क्या बना रहे हो सकता है पास में आपने बहुत बड़ी हिट दी हो, उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने हिट दिया या फ्लॉप दिया है तो मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। फर्क मुझे पड़ेगा इस वक्त आप क्या कर रहे हैं। व्हेन आई मेट हिम आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि यार ये फिल्म, एंड मैंने तब तक टशन देखी नहीं थी उसके बाद, और आज तक मैंने टशन नहीं देखी। मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई, मुझे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बिल्कुल।